Hello dear students, welcome to this course on complex analysis. This is your lecture number 5.2 in this week of singularities and residues. So today we will be delivering one of the most important lecture in this course of complex analysis, because today we will be concluding everything. So you defined many notions, right? You wrote many theorems, results, etc throughout this course. So see, in mathematics what we do is we firstly propose something, right? That we have this proposition actually means that you are going to write down a theorem later on, and in this theorem you're going to use these results, right? This is what we do in mathematics. Now today is the same kind of lecture. Whatever we have studied, we studied the notion of singularity, we studied isolated, non-isolated singularity, and after that we said that non-isolated singularity are actually not the point of main concern for us. We will study just isolated singularity, and we defined three types in that. We studied removable singularity, we studied pole, we studied essential singularity. In the beginning, for the definition of these three things, you just know the use of Lorentz expansion, that you have to use Lorentz expansion. Unless you use Lorentz expansion, you cannot say anything about removable, pole or essential singularity. But later on, for removable singularity and pole, we wrote some more result. It like Riemann theorem we did for removable singularity, right? And that theorem is actually very important for us in order to identify whether the function will have removable singularity or not. So we did many such kind of result for the poles also. We said that if you have a function fz and it has a pole at, let's say, at z is equal to a, that means you can write that function in terms of some analytic function divided with z minus a to the power m, right? So these kind of result we did for pole also. But for the essential singularity, we just wrote down one thing, that if you have infinitely many terms in the expansion of Lorentz expansion, so in the Lorentz expansion I'm talking about the principal part. So in the principal part, if you have infinitely many terms, then you will say that that singularity is an essential singularity. But that's not enough, because we cannot write every time. So if someone is asking us whether this will have essential singularity or not at this point, I cannot move directly to Lorentz expansion and write down the Lorentz expansion, and then I will figure out that whether the function will have essential or not. So that's a difficult kind of thing. So today what we are going to study, we are going to begin this lecture by introducing a new theorem. What is that new theorem? The name of the theorem is Cassierati-Weierstrass theorem, and it's a theorem that is very important for essential singularity. It totally deals with essential singularity, and it has some more outcomes also, not only for the essential singularity but for the poles also. Suppose you know Cassierati-Weierstrass theorem, then you can actually write down something more about the poles. All right, so this Cassierati-Weierstrass theorem has huge number of applications. When you will study in the higher version of this complex analysis course, you will understand that in case of essential singularity, this Cassierati-Weierstrass theorem is going to play a very big role. Now once this thing is finished, singularities is finished, we will study meromorphic function, and after meromorphic function is done, we will move to one of the most important result in complex analysis, known as open mapping theorem. So open mapping theorem is one of the most important result, because this open mapping theorem will not hold for real analysis. It holds only for complex analysis, because it has such kind of properties like analytic behavior of your function. You know that analytic functions and holomorphic function here are exactly same. So because of this kind of nature, the open mapping theorem holds in complex analysis only. Now once open mapping theorem is finished, we will move to the Cauchy's theorem. Cauchy's theorem is also very important. That is totally different from what we did in real analysis. And once Cauchy's theorem is done, we will study some more thing about the integration we did in complex analysis. So one important theorem that is known as argument principle regarding integrations. So this is what your whole course was about. We are going to finish it today. All right, so now let us begin. तो बिगिन करते हैं स्टेटमेंट से जो Cassierati-Weierstrass थ्योरम की है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे कि सपोज आपने कंसीडर किया fz एक फंक्शन है, सपोज fz इज एन एनालिटिक फंक्शन, is an analytic function
इन ओमेगा, आप अपनी डोमेन समझो, उसमें से आपने क्या कर दिया, एक पॉइंट ए हटा दिया। ठीक है, ए कौन सा पॉइंट है, वही वाला पॉइंट है जिस पर एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। एंड ए इज एन, वन सेकेंड, एंड ए is an essential singularity, and A is an essential singularity of fz। तो A क्या है, essential singularity है आपके फंक्शन की। ठीक है, तो थियरम ये कहती है, यहां पर मैं लिखूंगा, देन फॉर एनी, कोई भी सी आप उठाओ कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, सो फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्या होगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, क्या हो, एफ जेड माइनस सी is less than epsilon whenever z belongs to delta neighborhood of this delta neighborhood of A। तो कैसिरेटी-वेरस्ट्रस थ्योरम यही है जो मैंने यहाँ पर लिख दी है। हालांकि आपको क्या पता, इस समय समझ में नहीं आ रहा हो कि ये क्या ये कहना चाह रही है थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम सिंपली ये कहना चाह रही है कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन उठाओ, सॉरी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ, आपके पास क्या होगा, एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा इस ए का, सच दैट जो भी आप उसमें से उठाओगे उस नेबरहुड में से पॉइंट, एफ जेड और सी के बीच में जो गैप होगा वो एप्सिलॉन से क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सबसे पहला मीनिंग ऑफ अबव थ्योरम, ठीक है। सो इसका मीनिंग ये निकल के आया कि जैसे आपके पास फंक्शन है एफ जेड, ठीक है, आप कोई भी सी रख रहे हो, जो मन आ रहा है आपका आप वो रख रहे हो, आपके पास एफ जेड और सी का गैप जो है वो एप्सिलॉन से कम आ रहा है वेन एवर जेड बिलोंग्स टू दिस। इट मीन्स क्या मीनिंग हो रहा है, पहला मीनिंग जो आप इससे कंक्लूड कर सकते हो, मीनिंग ये आप कंक्लूड कर सकते हो कि अगर आप लिमिट जेड गोज टू ए निकालो और एफ जेड लिखो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर दैट यू वांट, जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर रखोगे वो इसका आंसर आ सकता है। इट मींस लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगे, एक ऐसी सीक्वेंस आपको मिलेगी जो ए पर कन्वर्ज कर रही होगी और एफ जेड उस नंबर पर चला जाएगा। इस बात का क्या मतलब है, सेकेंड मीनिंग में लिखते हैं, तो ये मीनिंग ये है सिंपली कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सी देयर एग्जिस्ट जेड एन, एक सीक्वेंस मिलेगी बिलोंगिंग टू इसी डोमेन में जो आपका ये डोमेन है, ठीक है, ओमेगा माइनस ए, सच दैट जेड एन ए पर जा रहा है एंड एफ ऑफ जेड एन किस पर जा रहा है, सी पर। मीनिंग ये है कि एक ऐसी सीक्वेंस जेड एन हमेशा मिल जाएगी सच दैट आपका फंक्शन सी पर चला जाए, और सी जो है आर्बिट्रेरी वेरी कर रहा है, जो आप पे ले लोगे, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने 1 लिया तो 1 पर कन्वर्ज कर जाएगी, 2 लिया 2 पर कन्वर्ज कर जाएगी, 3 लिया 3 पर कन्वर्ज कर जाएगी, है ना। तो बस इतना ही इस थ्योरम का मीनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे हमें पता चल रहा है कि अगर आपके पास ए पर एसेंशियल सिंगुलैरिटी है तो फंक्शन की जो लिमिट है वो तो एग्जिस्ट नहीं करने वाली है, ठीक है, इट डजंट एग्जिस्ट। नाउ एक क्वेश्चन मैं इसके नीचे लिखूंगा ताकि आपको एक कैसिरेटी-वेरस्ट्रस थ्योरम याद रहे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, लेट एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 बाई जेड, ठीक है, डज देयर एग्जिस्ट जेड एन, क्या एक ऐसी सीक्वेंस जेड एन एग्जिस्ट करती है बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स प्लेन माइनस 0 सच दैट क्या हो, जेड एन 0 पर जा रहा हो एंड एफ ऑफ जेड एन किस पर जा रहा हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका मन आ रहा है वो बता दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा
200 प्लस आयोटा, कोई भी नंबर लिख लिया जो बना रहा है। तो अब हम कहेंगे यस। कैसे लिखेंगे यस? आंसर है इसका, इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है? यस, सिंस ज़ीरो इज एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ज़ीरो क्या है? इसेंशियल सिंगुलैरिटी है। सिंस ज़ीरो इज एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी, दिस इम्प्लाई, क्योंकि ज़ीरो एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, दिस इम्प्लाई कि देयर एग्जिस्ट Zn गोज टू ज़ीरो सच दैट Zn जो है आपका, एफ ऑफ Zn जो है आपका किस पर कन्वर्ट कर जाएगा? 200 प्लस आयोटा पर कन्वर्ट कर जाएगा। बात समझ आ गई आपको सिंपली? तो ये है आपके इस थ्योरम का मीनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रहे। हम प्रूफ तो नहीं देखेंगे, जो कैसिडी-वेरस्टस थ्योरम का, उसका प्रूफ तो हम नहीं देखेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा हमारे लिए। बट हम क्या करेंगे, उसका एक एप्लीकेशन देखेंगे। तो एप्लीकेशन हम इन टर्म्स ऑफ कोरोलरी देखेंगे। सो कोरोलरी, तो क्या है कोरोलरी? कोरोलरी सिंपली ये होगी कि अ फंक्शन fz has a pole of order m at z is equal to a। तो किसी फंक्शन के पास पोल होगा at z is equal to a if and only if लिमिट z goes to a, fz का आंसर कितना आ जाए? इन्फिनिटी। इट मीन्स आज से आपको ध्यान रखना है कि देखो, इसको आप समझ लेना, ये डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है। इन्फिनिटी आना अलग चीज़ है और डज नॉट एग्जिस्ट होना अलग चीज़ है। मतलब कि लिमिट ऑसिलेटरी है उसकी। जो पिछला वाला फंक्शन हमने पढ़ा उसमें लिमिट ऑसिलेटरी है और यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो अब इस कोरोलरी का हम प्रूफ लिखते हैं। तो क्योंकि इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, दैट्स वाई टू वे प्रूफ होगा। तो सबसे पहले फॉरवर्ड प्रूफ के बारे में बात करते हैं। तो फॉरवर्ड मान लो आपको जाना है, सपोज फंक्शन के पास पोल है। सिंस एफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट z इज इक्वल टू a, इट मीन्स क्या होगा? एक फंक्शन आपने पढ़ा है थ्योरम, ठीक है? तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन। सो देयर एग्जिस्ट फाई z एनालिटिक एंड फाई जेड नॉन ज़ीरो। ठीक है, एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फाई जेड जो कि एनालिटिक होगा और फाई जेड नॉन ज़ीरो होगा, सच दैट, सॉरी फाई जेड नॉन ज़ीरो नहीं, फाई ऑफ ए नॉन ज़ीरो, फाई ऑफ ए नॉन ज़ीरो, सच दैट एफ जेड जो है आपका वो कितना हो जाए? फाई जेड ओवर जेड माइनस ए टू द पावर, जितने ऑर्डर का पोल है। तो एम ऑर्डर का है ये पोल। अब बताओ, अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो लिमिट z गोज टू a कितना आएगा? फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए। अब क्योंकि ये तो ज़ीरो पर चला जाएगा और ऊपर फाइनाइट नंबर है, सो फाइनाइट अपॉन फाइनाइट नॉन ज़ीरो, फाइनाइट नॉन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, तो ये तो आ गया इन्फिनिटी। तो फॉरवर्ड पार्ट प्रूफ करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब हम बैकवर्ड के ऊपर वर्क करेंगे। नाउ तो आप लिखोगे कि लेट लिमिट z गोज टू a एफ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार आप रीमान थ्योरम को देख लो। तो रीमान थ्योरम से मैं डायरेक्टली कहूंगा, यहां से आपको क्या पता चल रहा है? दिस इंप्लाई एफ जेड इज नॉट बाउंडेड। ठीक, एफ जेड इज नॉट बाउंडेड एट, नहीं, इन एनी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ, इन एनी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z इज इक्वल टू a। तो z इज इक्वल टू a के किसी भी डिलीटेड नेबरहुड में ये बाउंडेड तो नहीं है। क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है तो डायरेक्टली मैं कहूंगा कि इसके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी नहीं हो सकती। cannot have removable singularity। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप
रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होने के लिए बाउंडेडनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डिलीटेड नेबरहुड, कोई ऐसा डिलीटेड नेबरहुड नहीं है जिस पर वो बाउंडेड नहीं है, तो फिर आप डायरेक्टली कह सकते हो कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी तो नहीं है। नाउ बाय कैसेराटी-वेरास्ट्रस थ्योरम लिमिट z गोज टू a एफ जेड जो है डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो यहां पर डजंट एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि वो ऑसिलेटरी है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पर जाएगी। बट यहां पर तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बस इन्फिनिटी पर जाएगी और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर नहीं जाएगी। सो दैट्स वाई सो z इज इक्वल टू a कैन नॉट बी इसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो क्या नहीं हो सकता, ये इसेंशियल सिंगुलैरिटी नहीं हो सकता, क्योंकि इसेंशियल सिंगुलैरिटी तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पर जाता है, बट ये तो सिर्फ इन्फिनिटी पर जा रहा है। दस एफ जेड हैज अ पोल। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि एफ जेड के पास सिंगुलैरिटी है एट ए पर। अब मुझे प्रूफ करना है कि वो पोल ही होगी, तो मैंने ये कर दिया बस, ठीक है। सो दस एफ जेड हैज अ पोल। अच्छा, और दूसरा सिंगुलैरिटी होगी क्यों? क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, अदरवाइज तो फाइनाइट आती है ना अगर सिंगुलैरिटी नहीं होती। तो ये लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि सिंगुलैरिटी तो होगी। अब उसके बाद क्योंकि दो अदर केसेस हट चुके हैं, तो उसके पास क्या आ जाएगा, पोल। हैज अ पोल एट z इज इक्वल टू ए। तो z इज इक्वल टू ए पर क्या है, एक पोल है इसके पास। गॉट इट, ठीक है। अब एक और कॉरोलरी हम पढ़ेंगे इसी कैसेराटी-वेरास्ट्रस थ्योरम के ऊपर, ये टोटली डिपेंडेंट है। सो कॉरोलरी, एक और कॉरोलरी हमें पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कॉरोलरी? कि पोल्स ऑफ एनी एनालिटिक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। पोल्स ऑफ एनी एनालिटिक फंक्शन इनसाइड, नहीं इंटीरियर लिखते हैं, इनसाइड वर्ड अच्छा नहीं है, इंटीरियर टू अ सिंपल क्लोज्ड कंटूर। तो पोल्स ऑफ एनी एनालिटिक फंक्शन इंटीरियर टू अ सिंपल क्लोज कंटूर आर फाइनाइट। क्या होते हैं? फाइनाइट इन नंबर। तो हमेशा क्या होते हैं, पोल्स जो है किसी भी कंटूर के इनसाइड में हमेशा फाइनाइट इन नंबर होते हैं, कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकते। कंडीशन है कि क्लोज कंटूर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लोज कंटूर है दैट मीन्स वो बाउंडेड अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसका मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, इसका प्रूफ कहीं ना कहीं उसी के आसपास घूमता है जो कैसेराटी-वेरास्ट्रस थ्योरम है, उसी के आसपास घूमता है। बट आप डायरेक्टली याद रख लोगे कि पोल्स जो है फाइनाइट ही होंगे किसी भी सिंपल क्लोज कंटूर के इनसाइड में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे कि कोई फंक्शन अगर आपके पास है तो उसको हम इन्फिनिटी पर कैसे एनालाइज करें कि इसके पास इन्फिनिटी पर क्या है, ठीक है। तो बिहेवियर, हम हेडिंग डालेंगे बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर हम बिहेवियर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इन्फिनिटी पर फंक्शन का कैसा बिहेवियर होगा, ठीक है। तो पहली चीज, अ फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक, is said to be analytic at z is equal to infinity if f of 1 by z is analytic at origin। तो अगर ये जो फंक्शन है अगर ये ओरिजिन पर एनालिटिक होगा तो हम एफ जेड को कह देंगे कि ये इन्फिनिटी पर एनालिटिक है, ठीक है। तो ये हमें बात कर रहे हैं कि इन्फिनिटी पर हम कैसे देखें चीज़ों को। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इन्फिनिटी पर ये एनालिटिक है या नहीं है, इट मीन्स कि उसका हमें रिवर्स देखना होगा, एफ ऑफ 1 बाई जेड को 0 पर आप देख लो, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ हम ये लिखेंगे एफ जेड हैज़ अ, एफ जेड के बारे में पहले 0 के बारे में बात करते हैं। तो हम लिखेंगे एफ जेड हैज़ अ 0
ऑफ ऑर्डर कोई एम मान लिया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि हैज़ अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर m एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ f of 1 by z has a zero of order m at 0, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन नहीं लग रहा सही मुझे, ओरिजिन को हटाकर 0 लिख लेते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ सेम टू सेम हम लिखेंगे एफ जेड हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर m at z is equal to 0. एफ जेड हैज़ अ पोल हो गया 0 पोल एंड, हाँ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की बात कर लेते हैं लास्ट, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। इफ f of 1 by z has a zero, has a pole of order m at z is equal to 0. If f of 1 by z has a isolated singularity at z is equal to 0, ठीक है। तो आप इस तरीके से सोचोगे कि आपसे अगर कोई बात कर रहा है, नहीं, ये 0 पर मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है, ये हम बात कर रहे हैं हैज़ अ 0 एट इन्फिनिटी, हाँ अब ठीक है। तो मतलब ये है कि कभी भी अगर आपसे इन्फिनिटी के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा है कोई इन चारों चीज़ों के बारे में, तो आप डायरेक्टली एफ ऑफ 1 बाई जेड को देखो, क्योंकि इन्फानाइट पर हम वर्क करना कम जानते हैं, तो हम इन्फानाइट पर वर्क ना कर हम फाइनाइट पर वर्क करते हैं, तो डेफिनेशन ही हमने यही दी है। तो ये डेफिनेशन है कि अगर इन्फिनिटी पर आपसे कोई इन चारों चीज़ों के बारे में पूछ रहा है तो आप एफ ऑफ 1 बाई जेड को 0 पर चेक कर लो, वही उसका बिहेवियर होगा इन्फिनिटी पर। गॉट इट? तो ये डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम एक थ्योरम लिख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। हालांकि कुछ लोग इसे प्रॉब्लम के रूप में भी लिखते हैं, बट हम एज अ थ्योरम इसको लिखेंगे ताकि आपको ये याद रहे। थ्योरम क्या है कि सपोज करो आपके पास क्या है, कोई फंक्शन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि लेट एफ जेड इज एन एंटायर फंक्शन, तो एफ जेड क्या है, एक एंटायर फंक्शन है विच हैज no singularity at infinity। तो एक ऐसा एंटायर फंक्शन आपके पास है जिसके पास इन्फिनिटी पर कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, तो आपको शो ये करना है कि शो दैट देन एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, ऐसा लिख लेते हैं, देन एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। इट मीन्स कोई भी एंटायर फंक्शन है उसके पास इन्फिनिटी पर सिंगुलैरिटी तो आएगी ही आएगी, है ना, क्योंकि एफ ऑफ 1 बाई जेड के पास क्या होगा, वो जैसे कि हमें बात करनी है कि वो फंक्शन एंटायर है इन्फिनिटी पर, इस बारे में बात करनी है ना, सिंगुलैरिटी उसके पास नहीं है इन्फिनिटी पर, तो हम एफ ऑफ 1 बाई जेड के ऊपर वर्क करेंगे। तो थोड़ी देर में देखेंगे इस चीज़ को, प्रूफ लिखेंगे इसका ईजी सा प्रूफ है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं थोड़ा आगे से, प्रूफ। तो क्या है इसका प्रूफ? सबसे पहले तो आपके पास क्या है, फंक्शन एंटायर है, सिंस एफ जेड इज एंटायर। तो अगर एफ जेड एंटायर है, दिस इंप्लाई एफ जेड का आप पावर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हो, सो ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर एंड सो ऑन लाइक दिस, प्रोवाइडेड कि मॉड जेड लेस देन इन्फिनिटी है। नाउ आप अगर ऊपर वाले एक्सपेंशन को देख रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ 1 बाई जेड के एक्सपेंशन को देखो। एफ ऑफ 1 बाई जेड का एक्सपेंशन कितना आएगा, ए नॉट प्लस ए वन बाई जेड प्लस ए टू बाई जेड स्क्वायर, ऐसे से करके चलेगा ये। अब आप 0 से दूर रहोगे, क्योंकि 1 बाई जेड तभी डिफाइन तभी होगा जब हम 0 से दूर रहेंगे, तो मैंने क्या करा, 0 से ग्रेटर रखा इसको, ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाई एफ ऑफ 1 बाई जेड हैज एन इसेंशियल सिंगुलैरिटी। क्यों?
क्योंकि इसके लॉरेंज एक्सपेंशन में इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं जिसमें नेगेटिव पार्ट्स हैं, प्रिंसिपल पार्ट इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्स का है. सो एफ ऑफ 1 बाई जेड हैज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इम्प्लाई, यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर इसके पास एसेंशियल सिंगुलरिटी एफ ऑफ 1 बाई जेड के पास, सबसे पहले तो इधर आ जाओ वापस. आपने फंक्शन जो है क्या लिया हुआ है, एंटायर फंक्शन हमारे पास है. देन मैंने इसका एफ ऑफ 1 बाई जेड देखा तो ये मेरे पास वो आया. नाउ एफ ऑफ 1 बाई जेड हमारे पास एसेंशियल सिंगुलरिटी आ रही है क्योंकि उसके पास नेगेटिव पार्ट्स इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स है. नाउ सिंस हमारे पास क्या है, इनिशियली देखो एफ जेड इज एंटायर फंक्शन. एफ जेड एंटायर फंक्शन है विच हैज नो सिंगुलरिटी एट इन्फिनिटी. तो नो सिंगुलरिटी अगर इन्फिनिटी के पास है, कि इन्फिनिटी पर कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है, तो इस बात का क्या मतलब है, आपने क्या कहा था कि कोई फंक्शन एनालिटिक है इन्फिनिटी पर अगर एफ ऑफ 1 बाई जेड एनालिटिक है 0 पर. तो यहां से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रही क्योंकि एफ ऑफ 1 बाई जेड के पास तो सिंगुलरिटी है. सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक at z is equal to infinity, this imply f of 1 by z has singularity. f of 1 by z has essential singularity. क्या है इसके पास, essential singularity है at z. no sorry क्या लिख रहा हूं मैं ये. Since f z is analytic at z is equal to infinity, that means f of 1 by z is analytic at z is equal to 0. तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि f of 1 by z हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी आपने बोला. अब आप कह रहे हो कि वो तो एनालिटिक है 0 पर, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. दिस इंप्लाई एफ जेड जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा c. क्यों, a नॉट आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि अगर बाकी कोफिशिएंट, यहां पर लिखता हूं an is 0 for all n belongs to natural number, क्योंकि अगर बाकी पोर्शन बचे इसके एक्सपेंशन में, अगर बाकी पोर्शन बचे, ये पीछे वाले पोर्शन अगर सरवाइव कर गए तो इसेंशियल सिंगुलरिटी आना तय है. दैट मीन्स कि कांस्टेंट फंक्शन के अलावा कोई भी फंक्शन आप लो जो कि एनालिटिक है, उसका अगर आपने 1 बाई जेड रखा तो वो इसेंशियल सिंगुलरिटी रखेगा ही रखेगा, है ना. तो दैट्स वाई यहां पर हमें प्रॉब्लम आ गई. सो इट मीन्स कि अगर कोई एंटायर फंक्शन है सपोज और इन्फिनिटी पर वो एनालिटिक है, देन इट हैज सिंगुलरिटी एट इन्फिनिटी अनलेस इट्स अ कांस्टेंट. गॉट इट. अब हम एक और रिजल्ट लिखेंगे जो कि हालांकि एप्लीकेशन ही है उन चीज़ों का जो हमने अभी तक सीखा है, बट इसे मैं एज अ रिजल्ट की तरह यहाँ पर फॉर्मुलेट करूँगा ताकि आपको ये याद रहे. ठीक है. तो रिजल्ट बहुत सिंपल है कि सपोज करो एनालिटिक फंक्शन आपके पास कोई है, तो लिखेंगे कि लेट एफ जेड, नहीं ऐसा लिखते हैं, हाँ, लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन. ठीक है. तो क्या लिखेंगे, एफ जेड अगर एनालिटिक है देन इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर के. ऑर्डर के का क्या मतलब है कि उसकी डिग्री के है. ठीक है. एफ जेड इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर के इफ एंड ओनली इफ क्या हो आपके पास जो उसकी सिंगुलरिटी है वो सिर्फ इन्फिनिटी पर ही हो. ठीक है. इफ एंड ओनली इफ एफ जेड हैज ओनली इफ सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, नहीं कैसा लिखना चाहिए, if the only singularity of fz, ठीक है, is a pole of order k at infinity. तो मीनिंग समझ आ रहा है आपको. तो अगर किसी एनालिटिक फंक्शन के पास सिर्फ एक ही सिंगुलरिटी है, वो भी इन्फिनिटी पर है, और वो कौन सी सिंगुलरिटी होनी चाहिए, पोल. ठीक है. देन आप कह सकते हो कि वो पॉलिनोमियल है. अगर आपके पास पॉलिनोमियल है दैट मीन्स उसके पास सिर्फ एक ही सिंगुलरिटी होगी के ऑर्डर की, और वो क्या होगी, पोल होगी. तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है.
दिस रिजल्ट इज इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ऑल राइट। तो आपके पास सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फंक्शन क्योंकि एनालिटिक है, ठीक है, तो मतलब ऐसा आप समझ लो कि बैकवर्ड से फॉरवर्ड या फॉरवर्ड से बैकवर्ड हम चलते हैं, या फिर चलो पहले फॉरवर्ड से बैकवर्ड आते हैं, ठीक है। तो मैं फॉरवर्ड से बैकवर्ड आ रहा हूँ। तो क्या है, सबसे पहले आपके पास एनालिटिक फंक्शन है और सिंगुलैरिटी मान लो उसकी पोल है ऑर्डर इन्फिनिटी पर, ठीक है। लेट ओनली सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड इज अ पोल, ठीक है, ऑफ ऑर्डर के एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर अगर सिंगुलैरिटी है दैट मीन्स पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर आप कैसा लिख सकते हो अपने फंक्शन को, एफ जेड इज इक्वल टू समेशन ए एन जेड टू द पावर एन, एन ग्रेटर देन जीरो, और यहां पर मैं लिख दूंगा मॉड जेड लेस देन इन्फिनिटी पर ये एप्लीकेबल है, राइट। नाउ मैं रिप्लेस कर दूंगा, रिप्लेस z बाई 1 बाई जेड। सो रिप्लेस क्या करना है, z की जगह 1 बाई जेड रिप्लेस कर रहा है, तो आपके पास एक्सपेंशन कितना आ जाएगा, f ऑफ 1 बाई जेड इज इक्वल टू समेशन ए एन जेड टू द पावर एन, एन ग्रेटर देन जीरो। अब यहां पर बस मुझे जीरो से इसको दूर रखना होगा क्योंकि जीरो पर ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। नाउ सिंस एफ जेड हैज पोल of order k at infinity, this imply f of 1 by z has pole of order k at z is equal to 0। तो z is equal to 0 के पास उसके पास क्या है, पोल है। क्योंकि ऑर्डर k का है ये, इट मीन्स यहां से हमें क्या पता चलेगा, दिस इंप्लाई k, जैसे k ऐसा आप समझ लो कि इसके पास k ऑर्डर का पोल है। इट मीन्स कि जो हमारा ये जो लॉरेंज एक्सपेंशन है एफ ऑफ 1 बाई जेड का, एफ ऑफ 1 बाई जेड का लॉरेंज एक्सपेंशन क्या है, इसका एक्सपेंशन है ए नॉट ए 1 बाई जेड ए 2 बाई जेड स्क्वायर ए 3 बाई जेड क्यूब, एंड इस तरीके से चलने में लगा हुआ है। यहां कहीं ए के आएगा एंड देन ए के प्लस 1 ओवर जेड टू द पावर के प्लस 1 एंड सो ऑन। अगर ये पीछे वाले सर्वाइव कर गए तो फिर जीरो पर एसेंशियल सिंगुलैरिटी आ जाएगी, सो मस्ट बी जीरो। इनको जीरो होना बड़ा जरूरी है क्योंकि अदरवाइज एसेंशियल सिंगुलैरिटी आ जाएगी, और इसका नॉन जीरो होना जरूरी क्यों है, क्योंकि के ऑर्डर का पोल है एट जेड इज इक्वल टू जीरो, तो प्रिंसिपल पार्ट में यहां तक ही चलेगा वो काम। बात समझ आ गई। सो दिस इंप्लाई ए के इज ए एन इज जीरो, this imply an is 0 for all n greater than k and ak is non-zero, greater than, strictly greater than k, ठीक है, and ak is non-zero। so this imply f of 1 by z कितना हो जाएगा, a नॉट प्लस a 1 by z a 2 by z स्क्वायर अप टू ak by z टू द पावर k। अब आप यहां से fz की वैल्यू निकाल लोगे तो fz कितना आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा ना एक। तो बैकवर्ड प्रूफ करना ही इसको डिफिकल्ट था, फॉरवर्ड प्रूफ करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड अगर आप देखो, फॉरवर्ड का क्या मतलब समझ रहे हो आप, कि पॉलिनोमियल अगर है, अगर वो पॉलिनोमियल है तो इन्फिनिटी पर पोल ही आपको मिलेगा उसका, है ना। ठीक है, तो बस फॉरवर्ड प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैकवर्ड प्रूफ करने में ही प्रॉब्लम थी। गॉट इट। आपने रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन तो पढ़ी हुई है। रैशनल फंक्शंस के बारे में आप जानते हो कि न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो इफ f इज पॉलिनोमियल, g इज पॉलिनोमियल, देन f बाई g इज रैशनल, प्रोवाइडेड कि जिस डोमेन पर आप उसे डिफाइन कर रहे हो, जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरोस पर होना चाहिए। अब रैशनल फंक्शन की यहां पर हम एक और कैरेक्टरिस्टिक लिखने वाले हैं कि इन टर्म्स ऑफ सिंगुलैरिटीज। मीनिंग ये है कि इस चीज को यूज करके आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रैशनल डायरेक्टली बोल सकते हो, बिना इस चीज को जाने कि डिनोमिनेटर में कब जीरो हो रहा है कब नहीं हो रहा है। या फिर अगर आपके पास फंक्शन रैशनल है तो आप बोल सकते हो सिंगुलैरिटीज के ऊपर, और सिंगुलैरिटीज हैं तो फिर रैशनल फंक्शन के बारे में बोल सकते हो कुछ। तो वो लिखते हैं हम, ठीक है। तो लिखेंगे कि न्यू
criteria to see rational function. तो देखो क्या है क्राइटेरिया, एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड आपके पास कोई एनालिटिक फंक्शन है, वो रैशनल है, इज रैशनल, ठीक है, इट इज रैशनल इफ एंड ओनली इफ एफ हैज नो सिंगुलैरिटी in the extended complex plane, ठीक है, other than pole. मीनिंग ये है कि आज से आप डिफाइन कर रहे हो रैशनल फंक्शन को कि अगर एक ऐसा फंक्शन है जिसके पास एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कोई सिंगुलैरिटी नहीं है अदर देन पोल, तो डायरेक्टली आप उसे रैशनल कह सकते हो. इससे पहले आपने पढ़ा था कि फंक्शन एनालिटिक है और वो पॉलिनोमियल होगा इफ एंड ओनली इफ इट हैज सिंगुलैरिटी ऑफ ऑर्डर के एट इन्फिनिटी. तो देखो कहीं ना कहीं ये उसी से लेना देना इस स्टेटमेंट का भी है कि आपको फंक्शन को देखने की जरूरत नहीं है. आप अगर ये जानते हो कि एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में सिर्फ इसके पास पोल वाली सिंगुलैरिटी है, देन आप इस बात को बोल सकते हो. ठीक है, बात समझ आ गई. अदरवाइज आप डेफिनेशन बेसिक सी तो जानते ही हो रैशनल फंक्शन की, इसे आप फिलहाल के लिए याद कर लोगे. अब हम एक थ्योरम लिखेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. थ्योरम ये है, स्टार मार्क करते हैं इस थ्योरम के ऊपर. थ्योरम सिंपली ये है कि सपोज करिए आपके पास फंक्शन है जो कि एनालिटिक है. इफ अ फंक्शन is analytic except for isolated singularities, ठीक है, in extended complex plane. एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब हो रहा है कि बात हो रही है इन्फिनिटी पे, ठीक है. देन सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज, ठीक है, ऑफ एफ जेड इक्वल्स 0. इस थ्योरम को हम प्रूफ भी करेंगे कि आपके पास अगर सिर्फ ऐसा फंक्शन है जो एनालिटिक है एक्सेप्ट फॉर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट इन्फिनिटी, देन सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब इसका प्रूफ लिखते हैं यहां पर से. तो देखो प्रूफ कैसे बिगिन करेंगे. आपके पास फंक्शन है तो यहां से हम लिखेंगे सिंस द फंक्शन कैन ओनली हैव, क्योंकि बात हो रही है आइसोलेटेड वर्ड, ठीक है, यहां पर वर्ड यूज हो रहा है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, और वो भी किस पर, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पर. तो क्या लिखेंगे, सिंस द फंक्शन कैन ओनली हैव, द फंक्शन कैन ओनली हैव फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है. Since the function can only have isolated singularity, this is because, यहां पर मैं रीजन लिख रहा हूं इसका, this is because otherwise it will have a limit point, singularities will have a limit point, otherwise singularity will have a limit point, singularities वर्ड यूज होना चाहिए था, singularities will have a limit point, ठीक है. और कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो, तो मैंने लिखा जाए एट इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी पर हमें क्या मिल जाएगा फिर, अदरवाइज वो लिमिट पॉइंट मिल जाएगा जाए, अगर फाइनाइटली मैनी नहीं हुए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास भले ही आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हैं और वो इनफाइनाइटली मैनी हैं,
तो क्योंकि अगर वो इन्फाइनाइटली मैनी है और आइसोलेटेड है, दैट्स वाई वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगी। तो इन्फिनिटी पर आपको क्या मिल जाएगा फिर, मतलब कि एक सिंगुलैरिटी मिल जाएगी जो नॉन आइसोलेटेड है। बट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हमारी है इन्फिनिटी पर। तो फंक्शन ने ये गिवन दे दिया कि उसके पास इन्फिनिटी पर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। तो इससे मैं डायरेक्टली ये बोल रहा हूं कि फिर फंक्शन के पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज ही हो सकती हैं, उसके अलावा नहीं हो सकती कोई भी। क्योंकि अगर कोई और भी आइसोलेटेड के अलावा, तो वो इन्फिनिटी पर ही उसे मिलेगी। बात समझ आ रही है? वो जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 1/sin z, है ना, तो 1/sin z जो है, अगर आप देखोगे कि z की वैल्यूज अगर आपने n पाई रखी, सो सपोज z इज n पाई, तो वो क्या है, ये जो है व्हेन हर एक z इज इक्वल टू n पाई के लिए इसके पास सिंगुलैरिटी है। अब सारी की सारी आइसोलेटेड भी है क्योंकि दूर दूर है, एक एक यूनिट दूर है साइंस n पाई, राइट। तो इसका मतलब इन्फिनिटी पर उसे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी मिलेगी, क्योंकि वो जो n पाई है वो इन्फिनिटी की तरफ तो टेंड कर रहा है। तो इन्फिनिटी उस सिंगुलैरिटी का लिमिट पॉइंट बन जाएगा, उन सिंगुलैरिटीज का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं, सिंस द फंक्शन कैन ओनली हैव फाइनाइटली मेनी सिंगुलैरिटीज, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज, बिकॉज otherwise singularity will have a limit point xi, possibility at infinity, and it will be non isolated singularity। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो जाएगा। गॉट इट? बात समझ आ गई? ठीक है। दस, अब मैं क्या करता हूं, कोई सर्कल पिक करता हूं। दस कंसीडर सी अ सर्कल ऑफ रेडियस, किसी भी रेडियस का आप पकड़ लो, आपने आर का उठाया, ठीक है, सो दैट ऑल सिंगुलैरिटीज, क्योंकि आपके पास फाइनाइटली मैनी ही है, तो सारी के सारी सिंगुलैरिटीज को उसके अंदर कंटेन कर सकते हो ना आप, रेडियस आर, सो दैट ऑल सिंगुलैरिटीज लाइज इनसाइड सी। तो सारी की सारी सिंगुलैरिटीज सी के अंदर लाई करनी चाहिए। बाय रेजिड्यू थ्योरम आप क्या जानते हो? बाय रेजिड्यू थ्योरम आप जानते हो कि अगर आपने इंटीग्रेशन किया एफ जेड डी जेड का ओवर सी, तो आपके पास सारी की सारी सिंगुलैरिटीज आ जाएंगी। और आप सपोज कर लो कि सिंगुलैरिटीज जो थी वो z इज इक्वल टू जेड के पर थी, तो यहाँ पर मैं k की वैल्यू 1 to n मूव कराता हूँ, k की वैल्यू 1 to n मैंने मूव कराई, और यहाँ पर मैंने लिख दिया रेजिड्यूज, और यहाँ पर लिखा एफ जेड, और यहाँ पर लिखा z इज इक्वल टू जेड के। बात समझ आ गई? ठीक है। नाउ ये हमें पता है कि ये इतना आएगा ही आएगा। अब आपने क्या कहा है कि C एक ऐसा सर्कल है जिसके अंदर सारी की सारी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ आप इस तरीके से सोचोगे, मैं एक और चीज़ यहाँ पर लिखने वाला हूँ, आप इस तरीके से सोचोगे कि जैसे ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। नाउ ऑन दिस कॉम्प्लेक्स प्लेन आपने एक सर्कल बनाया था जिसके अंदर फाइनाइटली मैनी ही सिंगुलैरिटी थी, ठीक है। तो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये। इन द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन लेट अस से you have finitely many singularity z1 z2 z3 z4 ऐसे करके मान लो zn। तो ये फाइनाइटली मैनी सिंगुलैरिटीज इस एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपके पास है, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। नाउ जो आपने अभी भी कंटूर इंटीग्रल बनाया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड ओवर सी जो है क्या हो रहा है, इज इक्वल टू दैट आ रहा है, जो रेजिड्यू थ्योरम से मैंने लिखा। तो मैंने डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज ली, बट अगर आप इसे देखो कि अगर आप इसे इन्फिनिटी की टर्म्स में देखो, तो इन्फिनिटी के लिए ये एक तरीके से आप ऐसा सोच सकते हो कि इन्फिनिटी के लिए मैं कैसे बोलूं इस चीज को कि ये ये मेरा पॉइंट ये है कि इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज आएगी। तो पहले मैं लिखता हूं इस चीज को, इन द लास्ट इक्वेशन, ठीक है, C is traversed clockwise, तो C आपका क्या था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। फॉर क्लॉकवाइज C is traversed clockwise, फॉर सॉरी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। C is traversed एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज
फॉर z इज इक्वल टू z1 z2, इन सभी सिंगुलैरिटीज के लिए ये क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, बट relative to the point at infinity, ठीक है, infinity पर क्या होगा, this direction will be considered, this direction will be considered as clockwise। इस चीज़ को मैं बाद में समझाऊंगा थोड़ा सा फिगर से, हो सकता है मैं डिस्कशन में समझाऊं कि क्लॉकवाइज क्यों आया ये, बट आप अगर फील कर सकते हो तो फील करने की कोशिश करना। अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी फिनिश करना चाह रहा हूँ। तो आप ऐसा समझ लो कि इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो कंटूर सी है, इस कंटूर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड कितना आएगा, ये अब माइनस टाइम्स आएगा, माइनस टाइम्स 2 पाई आई, क्योंकि इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा हो रहा है। तो इसके आउटसाइड में जो इन्फिनिटी है, इसके अंदर तो ये फाइनाइटली मैनी है, इसके आउटसाइड में जो है उस पर एक ही सिंगुलैरिटी है इस कंटूर के आउटसाइड पर, और वो है इन्फिनिटी। नाउ उस इन्फिनिटी पर हमारा आंसर इतना आ गया बाय रेजिड्यू थ्योरम, बाय रेजिड्यू थ्योरम मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, दोनों को यहां पर ऐड करा दूंगा। तो दोनों को अगर आप ऐड करा दोगे तो कितना आ जाएगा, एडिंग बोथ, सो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू z1, ठीक है। नहीं, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ऐड करके काम नहीं बनेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। सो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू z1 ऑफ एफ जेड, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू z2, और ऐसे करते 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 रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू z कितनी थी, n थी हमारे पास ना, प्लस रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर आप सिर्फ इस बात को अज्यूम कर लो कि इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग के क्लॉकवाइज आएगा, कभी और मुझे डायग्राम के थ्रू समझाना पड़ेगा इस चीज़ को, बट आप ऐसा सोच लो कि सारी की सारी सिंगुलैरिटी जो फंक्शन के पास थी फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो आपने सर्कल के अंदर रख दी, अब बस एक सिंगुलैरिटी बची आउटसाइड में। ये अगर आप इसको मानो कि वो उसको क्या कर रहा है, ट्रैवर्स कर रहा है, उसको अपने अंदर रखकर, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से वो ट्रैवर्स करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। दैट्स वाई आपका रेजिड्यू थ्योरम ये रिजल्ट आपको देगा। तो फाइनली आपके पास रेजिड्यूज का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। इस थ्योरम को आपने फिलहाल के लिए याद रखना है। क्या मैंने किया, एक बार फिलहाल देख लो। हमने ये कहा कि आपके पास फंक्शन अगर कोई है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, और उसके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हैं, सिर्फ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज, तो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पर अगर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज अगर किसी के पास हैं तो उसका सम ऑफ रेजिड्यूज हमेशा 0 आता है। अब मैंने ये स्टेटमेंट दी कि फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज ही हो सकती हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। तो अब इन्फिनिटी पर हमें पता है कि सिंगुलैरिटी आएगी, तो हमने यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग अप्लाई किया रेजिड्यू थ्योरम डिफरेंटली, और बाकी जो फाइनाइट प्लेन में थी उनके लिए डिफरेंटली। नाउ दोनों का सम क्योंकि 0 आएगा, सॉरी डिफरेंस 0 आएगा, दैट्स वाई हमारे पास आंसर इतना आ गया। बात समझ आ गई, ठीक है। अब मैं आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल यहां पर लिखने जा रहा हूं। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। सो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये इंटीग्रेशन में आपको हेल्प करेगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं वो हम लिख लेते हैं। जो थ्योरम है उसको लिखूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा थ्योरम को, हालांकि ये जनरलाइज्ड वर्जन है, जो जनरलाइज्ड नहीं है उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो इसी से कैलकुलेट हो जाता है। तो मैं स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ, प्रूफ मैं वैसे भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखूंगा। तो मैंने लिखा कि लेट एफ जेड बी एनालिटिक, ठीक है, विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कंटूर। तो सिंपल क्लोज कंटूर के अंदर और उसके ऊपर, ठीक है, गामा नाम दे दिया मैंने कंटूर को। अब मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं एजेस, ठीक है, दो नोटेशन में लिख रहा हूं एजे और बी के।
ए जे क्या है, बी के क्या है, वो सबसे पहले समझना है। तो ए जे जो है, ए जे डिनोट द जीरोज, ठीक है, ए जे डिनोट द जीरोज ऑफ एफ जेड, ठीक है, नॉट लाइंग ऑन गामा, गामा के ऊपर लाई नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर लाई करनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, एफ जेड बी द लेट, नहीं ऐसा लिखते हैं, लेट ए जे डिनोट द जीरोज ऑफ एफ जेड लाइंग इंटीरियर टू गामा, ठीक है, इंटीरियर टू गामा। बी के डिनोट कर रहा है, मान लो डिनोट्स द पोल of fz lying interior to gamma। जो आपका j है मान लो वो क्या है, 1 से लेकर अप टू मान लो n तक जा रहा है, और जो k है मान लो वो 1 2 से लेकर अप टू m तक जा रहा है। मीनिंग ये है सिंपली कि आपके पास n नंबर ऑफ जीरोज है और m नंबर ऑफ पोल्स हैं, और इन गामा के इंटीरियर में लाई कर रहा है। तो फिर लिखेंगे then for any function, any analytic function gz, कोई सा भी आप एनालिटिक फंक्शन gz कंसीडर करो, आपके पास क्या होगा, अच्छा यहां पर लिख लेता हूं, विच इज एनालिटिक विदिन, विच इज एनालिटिक within and on gamma, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन जी जेड और यहाँ पर एफ डैश जेड ओवर एफ जेड और डी जेड। तो जब भी आपको ये दिखाई दे एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड, दैट मीन्स आपको आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करना है। जी जेड हो सकता है बहुत सारे केसेस में दिखाई दे और हो सकता है ना भी दिखाई दे। यहाँ पर है 1/2 पाई आयोटा, ठीक है। तो डी जेड कितना आएगा, ये समेशन आएगा पी जे जी ऑफ ए जे माइनस समेशन क्यू के, ठीक है, जी ऑफ बी के की वैल्यू जो है 1 से लेकर m तक चल रही है और j की वैल्यू भी 1 से लेकर m तक चल रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये सब नोटेशंस जो है इनको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। तो pj जो है वो क्या है, pj इज द ऑर्डर ऑफ aj, क्योंकि जैसे जीरोज है ये कोई ना कोई जीरो तो है ही, अगर ये जीरो है तो इसके पास कुछ ना कुछ ऑर्डर तो होगा ही, 1 2 3 कुछ भी तो होगा, तो pj उसका ऑर्डर है। अब यहां पर मैं लिखूंगा एक और चीज, qj जो है, qk जो है इज ऑर्डर ऑफ पोल, ठीक है, नहीं ऑर्डर ऑफ बी के लिख लेते हैं बस। तो आपने इसको ध्यान रखना है। बहुत सारे केसेस में जनरली gz को 1 रख लिया जाता है और pj और qk जो ये लिख रहा हूं मैं, इनका ऑर्डर जनरली 1 होता है जब आपको इसे कहीं पर अप्लाई करना पड़ गया। अगर आप अप्लाई करना पड़ गया आपको तब ऐसा होता है। बात समझ आ रही है आपको? अदरवाइज हम डायरेक्टली इसको कर लेते हैं काम इससे, ठीक है। अब हम लिखने जा रहे हैं राउचीज थ्योरम को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, राउचीज थ्योरम। सो ये जीरोज के बारे में हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट देता है। एक बार हमें इस थ्योरम को पढ़ना है। तो देखो, इस प्रूफ तो मैं नहीं लिखाऊंगा बट हम डायरेक्टली स्टेटमेंट से चलेंगे, ठीक है। सपोज आप करिए एफ जेड भी एनालिटिक है एंड जी जेड भी एनालिटिक है। सपोज एफ जेड एंड जी जेड बी एनालिटिक, ठीक है, दोनों के दोनों फंक्शंस एनालिटिक है विद इन and on a simple closed contour गामा। तो गामा के अंदर भी और उसके ऊपर भी। अब कंडीशन है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जेड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ जी जेड ऑन गामा, तो अगर ऐसा है, ठीक है, देन क्या आप कहोगे, देन आप कहोगे एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड
ये जो होगा हैव द सेम नंबर ऑफ जीरोज, हैव द सेम नंबर ऑफ जीरोज, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी इज ऑल्सो, मल्टीप्लिसिटी अगर रिपीट कर रहा है तो उसको भी काउंट कर रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, विद इन गामा। तो ये थ्योरम हमें हेल्प करेगी जहां पर हमें जीरोज के बारे में पूछा जाएगा। अगर हमसे जीरोज के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके पास कितने जीरो होंगे, तो आपको एक ऐसे फंक्शन g के बारे में सोचना होगा जिसके जीरोज आपको पता हो और उसकी हेल्प से आपको क्या मिल जाए, f के जीरो मिल जाए। इस टाइप से इस प्रॉब्लम को हम इसको हम प्रॉब्लम्स पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बस लास्ट रिजल्ट लिख लेते हैं ओपन मैपिंग थ्योरम का। ओपन मैपिंग थ्योरम, वन सेकेंड, ओपन मैपिंग थ्योरम। तो क्या है रिजल्ट? रिजल्ट बस बहुत ही आसान है कि सपोज आपके पास कोई नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है, इफ f इज अ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन in a domain D, then f is open। मीनिंग ये है कि हर एक ओपन सेट का आंसर एनालिटिक फंक्शंस के केस में ओपन ही आता है, प्रोवाइडेड कि फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉन कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ आ गई? तो यही है बस ओपन मैपिंग थ्योरम। इसी का हमें एप्लीकेशन करना होगा बहुत सारी जगहों पर, तो आपको इसे ध्यान रखना है कि हम इसे इस तरीके से लिखते हैं। गॉट इट? सो बस आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे। सो थैंक यू।